Hello everyone, I'm Zubair Hassan and I'm the technical manager at Quality Solutions Technologies. I welcome all the participants this amazing day and amazing webinar. Today we'll be talking about 3D scanning and we'll start from some basics of 3D scanning and then we'll move to our main agenda, that is 3D scanning for quality assurance and inspection. And I hope this session will be educational for you and informative for you, and hopefully we'll be having a great session today. Let's start. Before I jump into 3D scanning and today's webinar, I'll just want to introduce I want to introduce my company to those who are new to us today. Quality Solutions is basically technology and solutions providing company. We have three major products. The first is the SolidWorks, for which we have exclusive distribution, and we provide complete licensing, trainings, as well as different support for our customers within Pakistan. Secondly, we have the handheld 3D distribution, 3D scanners distribution from Scantech, and these are all industrial level 3D scanners offering from 20 microns accuracy, and we have a wide range of our products within our portfolio, and we have different solutions for different customer. We'll be talking that afterwards in the slides. And thirdly, we have the exclusive distribution for 3D printers. We deal in FDM 3D printers to SLA and metal-based and composite-based 3D printers in Pakistan, and we have our champion brand known as Kings, which is a very top 3D printers manufacturer in China. And we have industrial level 3D printers starting from envelope size 500 to beyond 1 meter and 2 meters based on different technologies. So this is just a little introduction for quality solutions. Again, come back to our topic, that is 3D scanning for quality assurance and inspection. So basically, we'll be discussing some 3D scanning techniques, some 3D scanning procedures, some as a whole, what we used to call as reverse engineering. We will be discussing that for which customers, for those participants who are new to 3D scanner. We have also be discussing some types of 3D scanners and the technologies used today. Along with that, we'll discuss its process in detail, from capturing the point cloud data and then processing that data and converting it into a useful mesh file. We will be discussing the complete workflow. I have some pre-recorded videos for 3D scanning and some live demonstrations with respect to inspection and quality assurance techniques that the 3D scanner and its associated software has to offer. And lastly, but not the least, we'll discuss some case studies based on my experience, and maybe you can discuss your questions and your suggestions or your queries me during the session, and maybe in the last during the Q&A session. And this is how we're going to cover our topics today. For ease, I'll be bilingual, and so that everyone and every participant that are here with us can easily understand what we are going to discuss today. जब हम 3D scanning की बात करते हैं तो we need to understand what is 3D scanning and how we define it. एक और term हम ज़्यादातर buzzword use करते हैं, that is reverse engineering. So what is actually reverse engineering and how it's linked? 3D scanning is linked with the reverse engineering. So in that aspect, 3D scanning is, in a shorter and a smaller definition, we can define it. A 3D scanning is a process of capturing the physical shape of the object. अब ये physical shape in the form of कोई भी mechanical part की शक्ल में हो सकता है, और या फिर किसी भी आर्टिफैक्ट वाटर टाइट बॉडी कोई भी आपकी हो सकती है, उसकी शक्ल में हो सकता है, कोई भी आपके पार्ट्स हो सकते हैं, आइदर नॉन मैकेनिकल और मैकेनिकल, किसी भी किस्म की कोई शेप जिसकी बेसिकली हम कैप्चर करके उसकी 3D
मॉडल की डेवलपमेंट करना चाहें, that is basically what we define 3D scanning. And 3D model हमें क्यों चाहिए होगा? 3D model, if for some of those who are new to design, 3D models जब किसी भी चीज़ की हमारे पास बैकबोन होती है, कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट, when we talk about product, we should have the 3D model in order to manufacture it, but मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, डिज़ाइन चेंजेस करने के लिए, ड्राइंग्स जनरेट करने के लिए, 3D प्रिंट करने के लिए, सीएनसी से मे बी जी कोड्स डेवलप करने के लिए। सो 3D मॉडल किसी भी चीज़ का एक मेन बैकबोन होती है किसी भी प्रोडक्ट की। उसके बगैर वी कैन नॉट बेसिकली डेवलप और डिज़ाइन प्रोडक्ट। तो उसकी डेवलपमेंट के लिए अब हमारे पास एक तो कन्वेंशनल वे होता है, जो कि हमारे पास होता है कि वी स्टार्ट विद अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मीन आई जस्ट लॉन्च ऑटोकैड या 3D सॉलिडवर्क्स में यूज़ करूँ, क्रियो यूज़ करूँ, एंड आई स्टार्ट फ्रॉम दी स्केच लाइक जनरेटिंग 2D ड्राइंग्स। मैं 2D स्केच पहले डिफाइन करूँ, उसकी बेसिस पे 3D में कन्वर्ट करूँ। बट मोस्ट ऑफ आवर एप्लीकेशंस जिस एक्सपेक्ट में काम कर रहे हैं, स्पेशली कंसिडरिंग द पाकिस्तानी environment, I think reverse model is the most appropriate model for us to, in order to sustain, in order to cope up with the advanced countries जिनकी advanced products हमारे पास मौजूद हैं। तो उस एस्पेक्ट में हम हमारे पास एक फिजिकल ऑब्जेक्ट फिजिकली मौजूद होगा मैन्युफैक्चरिंग हालत में, एंड वी नीड टू स्कैन इट। हमें उसकी ड्राइंग जनरेट करनी है, तो उस प्रोसेस के लिए बेसिकली हम 3D स्कैनिंग करते हैं। और 3D स्कैनिंग में बेसिकली हमारे पास 3D स्कैनर्स यूज होते हैं, डिफरेंट ग्रेड्स के होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। बट इट्स इसकी सबसे ब्यूटी ये है दैट इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इट्स वन ऑफ द एनडीटी टेक्निक्स विच इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। और इस टेक्निक की मदद से आर पार्ट्स आर सेफ, आर पार्ट्स वी डोंट नीड टू कैनिबलाइज इट। हमें उस पार्ट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना पड़ता, हमें उस पार्ट की मटेरियल को डैमेज नहीं करना पड़ता। एंड इट कैन कैप्चर द डिटेल्स दैट आर बीइंग एक्सपोज्ड एंड कैन बी सीन विद अ नेकेड आई। तो इसके प्रोसेस में हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें the first thing is to 3D scan the part and actually get the data। तो वो जो हम जिस पार्ट की किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को व्हेन हम स्कैन कर रहे होते हैं, तो वी गेट दी 3D पॉइंट क्लाउड डाटा। 3D पॉइंट क्लाउड डाटा बेसिकली उसी शेप की एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होती है, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। आपकी कोई भी शेप हो सकती है, तो उसकी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स एक रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में वी कॉल इट 3D पॉइंट क्लाउड डाटा। उसकी कैप्चरिंग होगी, और उसकी उस प्रोसेस के दौरान उसकी ज्योमेट्री प्लस अगर उसके ऊपर टेक्सचर भी हम कैप्चर करना चाहें, अगेन विद द अप्रोक्सीमेट स्कैनर, अप्रोप्रिएट स्कैनर, तो हम टेक्सचर की एबिलिटी के थ्रू उसके ऊपर ज्योमेट्रिकल फीचर पर टेक्सचर को भी कैप्चर कर सकते हैं। एंड देन आवर प्रोसेस इज द next phase, which is the cleaning of that data. Once we get the point cloud data, our next step is to clean it. And then once our point cloud data is clean it, we convert it into a triangular form, triangular data, which is known as standard tessellation language, also called STL file। तो ये जो फाइल होती है जब हमें इस डेटा से मिलती है, दैट इज द मोस्ट एसेंशियल फाइल और सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल होती है, जिसकी मदद से वी कैन एक्चुअली डेवलप, जो कि एज अ बेस फाइल यूज होती है फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग पर्पसेस। इस फाइल के बगैर हम 3D किसी भी पार्ट को रिवर्स नहीं कर सकते। तो ऑलवेज रिमेंबर कि एसटीएल फाइल इज द मेन फाइल, जिसकी मदद से हम आगे रिवर्स प्रोसेस अपना इनिशिएट करते हैं और आगे फर्दर उसकी कैड रीडेवलप करते हैं। And once this whole process is complete, we get the 3D CAD model, जिसकी मदद से basically we can, once we have the CAD file, you can modify it, you can make design changes, you can do analysis with it. There is a window that, once we have the CAD model, it opens, and there are various outputs which can be um,
can be traced and can be done with the help of a CAD model. तो ये मॉडल की मदद से हम अपने जब डिज़ाइन चेंजेस या अल्टरेशंस करके अपना एक न्यू कैड मॉडल रीडेवलप करते हैं, देन वी कैन फर्दर 3D प्रिंट इट, जिसमें हमारे पास जिसको हम प्रोटोटाइपिंग भी कहते हैं, या फिर हम इसकी जी कोड्स डेवलप करके सीएनसी के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, या फिर इसकी 2D ड्राइंग डेवलप करके लोकली यूजिंग कन्वेंशनल मशीन्स हम इसको डेवलप कर सकते हैं। तो इसकी मजीद रिप्रेजेंटेशन विल डिस्कस इन आवर साइड फर्दर। इसी एक्सपेक्ट में एज अ ब्रॉडर टर्म में हम यूज करते हैं, वी कॉल दिस एज रिवर्स इंजीनियरिंग. So basically, reverse engineering is not a new process to us. I believe so. Most of our participants have the understanding of it. But in order to, for some who don't have, so basically, reverse engineering, जो 3D scanning है, that is one of the processes of reverse engineering. 3D scanning is, I would say, the latest of the latest techniques that is being utilized to reverse the part. But in the future, in the past, we use reverse engineering and we develop parts using conventional tools, like we have the calipers, vernier calipers, gauges, profile meters, maybe some sort of conventional tools, conventional measuring tapes. So these were used in order to trace out the features, trace out the 2D dimensions of the part. But the problem with that was that these were not as much accurate. There were many design alterations. हमें हमारे डिजाइन में बहुत ज्यादा खामियां होती थी, और हमारे डिजाइन में बहुत ज्यादा लूप होल्स मौजूद होते थे। और जब हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स सरफेस की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे हमारे पास कोई कास्टेड पार्ट है जिसकी बेंडी सरफेसेस हैं, जिसकी किसी भी लीनियर टूल या मेजरिंग टूल से डायमेंशन नोट नहीं की जा सकती, तो उधर हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू आता था उसको रीडेवलप करने। तो फॉर दैट एक्सपेक्ट द टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड एंड द 3D scanners were brought into the market, and these were a great help in order to trace out the features and develop the 2D drawings out of it. So this is one of the examples, like we mentioned, of the engine, tractor engine. So you can see the first is basically the physical part, and then we scanned it and converted into STL file, and then convert we then process this file, STL file, and make the CAD model, and for on which we can further do simulations, or we can generate, once our model is validated, we can make the 2D drawings like I discussed before. In order to clearly defining it, for those who don't understand the point cloud data, so basically this is a very beautiful example of an impeller. The first image, you'll see the point cloud data. This is basically again the same thing which I discussed before. It is basically um, the mapping of the actual physical part in the and digital representation in the form of points. Now these points are what we get as an output, the first output from the 3D scanner. So these points are further cleaned, and if there are any noises within the environment of this point cloud data, noises means if there are any irregular shapes or irregular data or unwanted data, we clean it and then convert this data into useful polygonal model, which is again also known as the STL file. And with this STL file, ये हमारे पास एक बेस फाइल कंसीडर होती है, and then we have reverse engineering softwares. Particularly, we use Geomagic Design X, but there are many other tools. You can also use CATIA, you can use Mesh to Surface. There are many other tools available, but Geomagic Design X is the most appropriate one, and it is specifically designed to handle the STL file and converted it into the reverse model. So we get the CAD model out of it, and again, once we have the CAD model, we can generate drawings, and we can further 3D print the part.
So this is very important to understand the reverse engineering process and the key important steps that are part of the complete process. And once this is completely done, then our complete reverse engineering process is complete. The types of once we talk about scanners, there are multiple types with which we can scan the part. I talk particularly, the most used ones or the most common ones are the handheld scanner. Again, as the name suggests, it's basically we used to hold this scanner in the hand, and it has the accuracy of normally of 15 microns or 20 microns. Now, again, we use these scanners in order to capture high intricate details of the mechanical part, जिसमें हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स किस्म के पार्ट्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, an engine cylinder block, an engine cylinder head, or crankshaft, pistons. Now these are all those of physical mechanical components which require high level of accuracy, and there is very less tolerance. So, in order to capture that in a perfect way, we use the handheld scanners in order to, perfectly capture the details and convert it into a useful CAD model. Second is the fixed and tripod-based scanner. These are again used. These scanners are basically have less accuracy, but these scanners can capture data, for example, in 200 meters range or 300 meters range. It's preferably used for mechanical reverse, but these scanners can be used in order to, scan the buildings, scan the plants, where there are a lot of complex piping structures, and and where the accuracy of the data can be accepted within the range of 1 millimeter. But in order to get high intricate details and high accuracy, the handheld scanners are always preferred. And then the third one is the tracking systems. Now, these are very important, and these systems are very accurate, and they offer accuracy of 20 microns. But these systems can be used. We need to scan some big parts or big objects. For example, I'm talking about 8 meters or 10 meters, 15 meters long part or object. Then these scanners are very useful, and these again offer the similar accuracy of 20 microns per meter. And with that, per meter, there is some deviation which we used to call volumetric deviation, but it is very much accurate in order to capture large parts. But for most of our parts that are within range of 3 meters or 2 meters, the handheld scanners are very effective, and they deliver the best result in terms of accuracy and in terms of data quality. So these are three types of scanners which we have discussed. And based on that, there is the technology again on which we on which we segregate scanners. The first, we discuss the types on the basis of size and data accuracy. The second is what we are trying to capture and what is the light source within the scanning technologies. So the first one, which is most commonly used, is the structure light that is basically used in order to capture the texture of the parts along with the geometry. Now, some of you ask, or they have a question in mind, that why we need to capture the texture. Well, in some cases, it is required. Like, for example, if I need to scan some artifacts or some museum parts, so there is a huge requirement in order to capture the texture along with the geometry. But these type of scanners which use structure light, they have particularly less accuracy, like 50 microns or 100 microns commonly. So
with these type of scanners, the artifacts are mostly acceptable, and there is we can actually develop or 3D print those articles, or maybe display it digitally on a web share or some sort of Sketchfab, in which we can scan those parts and upload it on the Sketchfab, and we can rotate it like a 3D model. So this is one of the applications of using the structure light. When we talk about the high level of accuracy, we always talk about using the lasers. Now, previously, there were two technologies. The previous technology was using the red laser, but in most of the scanners today, the blue laser is used because of its shorter wavelength and ability to capture the shiny and dark surfaces. The red laser, on the other hand, was having difficulty in capturing the shiny and black surfaces. In my experience, I've used Creaform, one of the leading scanners from Canadian brand. Now, right now, they have switched to blue laser, but previously, when I used those scanners, I faced a very difficulty in capturing these shiny and dark surfaces. So for that, we use some developers or some sprays on the part, some coatings on the part, and then we use to capture, and it all gets very messy. So blue laser, on the other hand, is very convenient, and it is the technology introduced by Scantech, and it is patented technology. And now almost every scanner in the world is shifted towards the blue laser, and it works really well on the shiny and dark surfaces. You just need to adjust the exposure, and it will work for you. And the third one, again, was after structure light, we got the scanner for infrared. These were also used in mid-tier level of accuracy. And also they were used, in mechanical parts where less accuracy was required. But most of the part, and today, when we talk about 3D scanners, the most one which we use is the laser, because we get sharp edges and sharp features as compared to the infrared or the structure line. So this is how we basically define scanners on the basis of its light sources. And previously we discussed scanners on the basis of its shape and ability to capture the larger part. So this is again one of the beautiful representation of the complete 3D scanning process. And as a reverse engineer, or as a someone who has greater interest in 3D scanning, this is one of the important information he should understand, and understand the process. So before once we go into the 3D scanning, the first thing is actually to prepare the part. Um, for that, what I mean कि आपका part जो है that वो ऑयल फ्री और ग्रीजी नहीं होना चाहिए, उस पे किसी किस्म की कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए, और वो क्लीन होना चाहिए. तो दैट इज व्हाट दिस सरफेस प्रिपरेशन रिक्वायर्स. एंड द सेकेंड स्टेप इज बेसिकली कि हम उसके बाउंड्री में या उस पार्ट के ऊपर मार्कर्स की प्लेसमेंट करते हैं. नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपने अक्सर, इफ सम ऑफ यू हैव गॉन थ्रू 3D स्कैनिंग या यूट्यूब पे आपने देखो, तो देयर इज ऑलवेज, यू हैव सीन दीज, you must have seen these markers. So these are in different sizes, starting from 3 mm to 6 mm, 12 mm, 18 mm, and now we have the magnetic markers as well, magnetic dices as well. It can be used on different parts, but for most of the parts that are under 1 meter, we preferably use the 6 mm markers most commonly, and where we need detailed features, we place the 3 mm markers. ये markers जो होते हैं, इन्हें हम targets भी कहते हैं, या इन्हें हम stickers भी कह सकते हैं. ये बेसिकली 3D स्कैनर के लिए एक बाउंड्री डिफाइन करते हैं, और उसकी बेसिस पे जब 3D स्कैनर कोई भी जब हम यूज करते हैं, इट बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्रामेट्री.
Now that's a very important process. फोटोग्रामेट्री में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक पार्ट और एक ऑब्जेक्ट के 360 में अपने कैमरास प्लेस करते हैं, डीएसएलआर कैमरास, और उसकी इमेजेस लेके उसको जस्ट पोज करके एक सिंगल इमेज बनाते हैं 3D। तो वो हमारे पास एक प्रीवियस टेक्निक है फोटोग्रामेट्री की। तो स्कैनर्स जितने भी हैं आज, जब हम स्कैनर्स की बात करते हैं, 3D स्कैनर्स की, दे ऑल वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्रामेट्री। और ये बेसिकली टारगेट्स डिफरेंट इमेजेस पर या फ्रेम्स पर सेकंड जब स्कैनर डाटा कैप्चर कर रहे होते हैं। ये टारगेट्स बेसिकली हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर को और इसके एल्गोरिदम को आपस में मल्टीपल ऑफ इमेजेस को स्टिच करने में, और उसके साथ उसको कंबाइन करके एक सिंगल मर्ज रिजल्ट आपको शो करने में। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे पास हेल्पफुल होते हैं। ये जब हमारे पास प्लेस हो जाते हैं, देन वी स्टार्ट द डाटा एक्विजिशन फेज। इसमें हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स रखी जाती हैं। अगेन हम उसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट इफ फॉर दिस इंफॉर्मेशन, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप हमारे पास होता है इन ऑर्डर कि हमने मेश अपनी साइज या अपना जो रेजोल्यूशन है, जो हमारी पॉइंट डेंसिटी है, उसको सेलेक्ट करना होता है और उसको डिफाइन करना होता है। जितनी पॉइंट डेंसिटी हम फाइन रखते हैं, उतना ज़्यादा अच्छी हमारे पास डिटेल्स आती हैं। एंड हमारे पास उससे डिफरेंट किस्म की जो शेप्स हैं वो ज़्यादा इन्हेंस्ड हमें मिलती हैं। But if we keep the mesh density or the point density as coarse, तो हमारे पास क्या होता है कि डिटेल्स हमारे पास उसी लेवल की होती हैं, और हमारे पास इन द एंड जो एसटीएल फाइल बनती है दैट इज ऑफ स्मॉलर साइज। सो ये हमारे पास बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस हमें ये डिसाइड करना होता है बेस्ड ऑन द पार्ट criticality and complexity, that what mesh density or the point density we need to select in this phase. This is very important. And secondly, we also select the laser exposure इन ऑर्डर टू गेट द डिटेल्स। तो हमें लेजर एक्सपोजर का एक पैरामीटर होता है जो कि हमें बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना होता है। आइदर कि हम बहुत ज़्यादा ब्राइट लेजर्स ना यूज़ करें और ऑप्टिमम लेजर्स को यूज़ करें during this phase. And secondly, the point density is the most important one. Once we select these parameter, then our next phase is basically the point cloud generation. Point cloud generation is the same step like I discussed before in my slide, कि हमारे पास स्कैनर सबसे पहले जो हमें आउटपुट देगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। एंड ये जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे ये उसी शेप की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होगी, जिसको हम प्रोसेस करते हुए क्लीन करते हुए हमारे पास जो है इन दी एंड हमारे पास एसटीएल हम इसकी डेवलप करते हैं। अब ये जो प्रोसेस है मेजरली 3D स्कैनिंग का, ये 4 स्टेप्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग द स्कैनिंग। और हमारे पास इन चारों स्टेप्स में डाटा एक्विजिशन, पॉइंट क्लाउड क्लीनिंग एंड पॉइंट क्लाउड प्रिपरेशन, थर्ड एसटीएल पॉइंट क्लाउड प्रिपरेशन के बाद डाटा मर्जिंग। हमारे पास डिफरेंट स्कैन्स को हमें मर्ज करना होता है। फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में रख के हमने डाटा की स्कैनिंग की और हमारे पास पॉइंट क्लाउड डाटा आया। एंड सेकेंडली इन्वर्टेड पोजीशन में इसकी बैक साइड पे जो फीचर्स हैं जो कि अभी हाइड हुए हुए हैं, हमें वो भी स्कैन करने हैं, और उन उसके बाद हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास डाटा हमें मिलता है उन दोनों को मर्ज करके इन दी एंड सिंगल एसटीएल क्रिएशन हमें बनानी होती है। तो हमारे पास स्कैनर की जो मेजर आउटपुट है वो हमारे पास यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है ड्यूरिंग द मेश जनरेशन स्टेज। एंड वंस वी गेट द एसटीएल फाइल, फिर हमारी आगे डिजाइनिंग, रिवर्स डिजाइनिंग की स्टेज शुरू होती है, जिसमें हम इसके ऊपर डिफरेंट फीचर्स को ट्रेस आउट करते हैं यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, एंड देन वी कन्वर्ट इट इनटू अ डिजिटल मॉडल। So this is the complete process of the 3D scanning. And
it clearly defines each and every step within the processing. Again, this is just another way of seeing things and another way of representing things. Point cloud data, triangular data, and then the mesh. And this one will majorly, or if you focus on this one, so this is what I'm talking about. If we zoom in into these points, we see that these are isolated points, and these are millions of points of the complete data. These point cloud data, and when is further processed, and we may convert it into small triangles, जो कि आप इस तरह से देख पा रहे हैं कि ये थ्री वर्टिसेस को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल हमने बनाया है। फिर इसी तरह से दिस वन इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो ट्राइंगल्स की जनरेशन है, इसके बाद इवेंचुअली हमारे पास एक किसी भी ऑब्जेक्ट की रफ सरफेस हमें मिल जाती है, और उस सरफेस की बेसिस पे हम आगे ट्रेस आउट करते हैं अपने फीचर्स को और रिवर्स मॉडल। This is again the pre-recorded video. I'll be showing some live demonstrations afterwards, but for my ease, I've just recorded few samples for you. This is basically the environment of the scan viewer software. Again, this can be any scanning software which comes with any other scanner, but for with our scanner from Scanology, we call this software Scan Viewer, and it has very detailed, tools and applications within this software, in which there is first tab for designing, for scanning the part, merging the part, and cleaning the part, and secondly for probing, third data optimization, once we get the STL file, if we need to further enhance the features of the STL file, हम इस tab में जाते हैं, and then some measurement tabs. We'll be going through those in our session further. But this one is an example of the 3D scanning, and you can see before I start this video, you can see that the point density, which I talked about, is a very critical parameter. And if zero point 0.5, or you can select zero point 0.2, but on the basis of that, your data size will be much bigger. So you have to always decide कि आपको कौन सा जो है पॉइंट डेंसिटी फीचर्स के हवाले से जो आपके पार्ट के ऊपर हैं, किस लेवल की डिटेल्स आपको रखनी है कि आपका डेटा साइज बहुत ज़्यादा बल्की ना हो, क्योंकि रिवर्स फिर आगे सॉफ्टवेयर में आपको उतना ज़्यादा टाइम प्रोसेस आपको लगता है उसको डेटा को प्रोसेस करने में और फर्दर उससे फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने में। तो जिस तरह हम स्कैनिंग शुरू करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेज इज टू बेसिकली define our point density and exposure and capture these markers, which I've already told you. And these are 6 mm size markers, which I've placed on this wheel axle. The part is basically the wheel axle, and I'm trying to scan it from different orientation. And once my targets are being registered in the environment, I'll create a background plane. अब बैकग्राउंड प्लेन का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम जो इन दी एंड जो डाटा है हमारे पास किसी भी टेबल पे पड़ा होगा, या किसी ग्रेनाइट टेबल पे, किसी सरफेस प्लेट पे पड़ा होगा, तो हमें वो सरफेस का डाटा नहीं चाहिए। वी ऑल ओनली नीड द डाटा ऑफ द एक्चुअल पार्ट। सो वी बेसिकली डिफाइन our background that the surface of the table should be excluded and the data above that should be captured. तो जब हमारे पास स्कैनिंग हो रही होती है, उसमें आप देख रहे हैं कि टेबल का इस टाइम डाटा नहीं आ रहा, एंड हमारे पास जो व्हील का डाटा है ये हमारे पास इसमें आ रहा है, और हम इसमें डिफरेंट लेजर्स मोड को यूज़ करते हैं। इस टाइम ये सिंगल लेजर मोड है, प्रीवियसली हम क्रॉस लेजर्स मोड यूज़ कर रहे थे। अगेन ये भी स्कैनर्स के साथ हमारे पास डिफरेंट लेजर्स के साथ हमने प्ले अराउंड करना होता है। क्रॉस लेजर इज बेसिकली यूज्ड in order to get the data at a macro level and fast capturing mode. And the single laser is basically used in order to get the data of some holes or some sharp edges.
सो इसमें हम डिफरेंट ओरिएंटेशंस में रखते हुए इस डेटा को स्कैन करेंगे। एंड वंस स्कैनिंग इज कंप्लीट, हमारे पास जिस तरह ये नॉइजेस हमें डाटा में शो हो रही हैं, आइसोलेटेड पार्टिकल्स शो हो रहे हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्टेज होती है इन पार्टिकल्स को क्लीन आउट करना। तो वो हमारे पास इस सॉफ्टवेयर के थ्रू फर्दर इसके अंदर सारी कमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, और हम इसी के अंदर रहते हुए डिस्कनेक्टेड जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स थे, यूजिंग अ सिंगल कमांड हम इनको डिलीट कर लेते हैं, और हमारे पास इन दी एंड जो है मैश जो है क्रिएट हो जाता है। और दिस इज इट विल टेक फ्यू मिनट्स समटाइम्स और फ्यू सेकेंड्स, एंड इवेंचुअली यू विल गेट द mesh file out of the point cloud data. I have the mesh file with me, and I'll show you in my slide further. Let's then jump towards our second demonstration. Um, इसमें भी हमारे पास this is again a pre-recorded video of how we basically merge two or three different scans. Now this is very important. Like I tell you कि हमने एक सरफेस पे रखे हुए पार्ट को टॉप एंड साइड पोजीशन से स्कैन कर लिया, बट व्हाट अबाउट कि हमने इसकी बॉटम स्कैन करनी है और इसको भी प्रीवियस स्कैन के साथ मर्ज करना है। सो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ हाउ वी बेसिकली scan the top surface and how we merge it using the environment of the software. तो इसी environment के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास ये दो different scans हैं, जिनको बेसिकली हम स्कैन इनको स्कैन करेंगे, और फर्दर इसके ऊपर जो हमारे पास इसके अंदर जो डिटेल्स हैं हम उनको कैप्चर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो डिफरेंट स्कैन्स हैं, वन इज फ्रॉम द टॉप साइड एंड अदर वन इज फ्रॉम द बॉटम साइड। तो हमारे पास एक दो बड़ी अच्छी टैब्स मौजूद होती हैं, दैट इज मार्कर सप्लाइसिंग एंड लेजर पॉइंट सप्लाइसिंग। अभी फर्स्ट स्टेज में हम मार्कर सप्लाइसिंग यूज कर रहे हैं। मार्कर सप्लाइसिंग में जो हमारे पास कॉमन मार्कर्स होंगे दोनों स्कैन्स के बीच में, हम उनको जो है मर्ज करते हैं, और हमारे पास इन दी एंड उनके बीच की डेविएशन जो है वो शो हो जाती है। एंड यू विल सी कि हमारे पास जो मर्ज हुआ हुआ एक प्रीव्यू हमें शो हो रहा है। जैसे ही हम इसे डन करते हैं तो आप देखेंगे कि इट विल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, एंड आपकी दोनों साइड्स का जो स्कैन्स के जो डेटा है वो हमारे पास मर्ज हो जाते हैं। सिमिलरली द सेकेंड टेक्निक इज नोन एज लेजर पॉइंट सप्लाइसिंग। लेजर पॉइंट सप्लाइसिंग में हम कॉमन फीचर्स दोनों स्कैन्स के बीच में सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इट कैन बी सम कॉर्नर, इट कैन बी सम वर्टेक्स, और सम सम ये एज, जिस तरह से हम इस डेमोन्स्ट्रेशन में सेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास हमने 3 और 4 डिफरेंट पॉइंट्स को सिलेक्ट करना होता है, और हमारे पास इन दी एंड जो डेटा जो है वो हमारे पास डेवलप हो जाता है। और जिस तरह से ये हमारे पास एक प्रीव्यू है, इसको हम जैसे ही अप्लाई करते हैं वी गेट अगेन द मर्ज रिजल्ट। अब दोनों में डिफरेंस हमारे पास होता है, ये बेस्ड ऑन हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स जब होते हैं तो हम उसमें दोनों टेक्निक्स हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। But the most acceptable और the most I would say easy one, और जिसमें हमारे पास डेटा की एक्यूरेसी काफ़ी हाई रहती है, दैट इज द मार्कर सप्लाइसिंग मेथड। मैं क्यों कह रहा हूँ मार्कर सप्लाइसिंग मेथड, बिकॉज इसमें एक स्पीकर्स जो मार्कर्स आपने दोनों पार्ट स्कैन्स के बीच में लगाए हुए हैं, आपने सिंपली उन कॉमन मार्कर्स को सेलेक्ट करना है, और उनकी पोजीशन ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। जबकि लेजर पॉइंट सप्लाइसिंग में आप मैन्युअली जाके खुद से ह्यूमन इंटरफेरेंस यूज होती है, और इसमें हम मैन्युअली जाके किसी भी डेटा को जो है हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक एरर का मार्जिन आ सकता है। तो दैट इज़ वाई मार्कर सप्लाइसिंग जो है हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। बट कभी हमारे पास इंडस्ट्री में कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे हम नहीं यूज़ कर पाते मार्कर सप्लाइसिंग, तो वहाँ पे फिर हम लेजर सप्लाइसिंग के थ्रू अपनी मर्जिंग करते हैं डेटा। अगेन this is the third demonstration in order for quality inspection. I'll be discussing that in my live demonstration throughout in my next slides. ये basically हमारे पास क्या होता है कि हमने 3D comparison करना है, जिस मकसद के लिए हम ये वेबिनार आज अरेंज कर रहे हैं। बेसिकली इसका हमारे पास क्या रोल है कि हमने अपनी जो है एक कैड डेवलप की है, और हमारे पास एक्चुअल पार्ट है, तो हमने उसको स्कैन किया है, और उसकी बेसिस पे हम दोनों के बीच की डेविएशन चेक करना चाहते हैं।
तो हमारे पास ये बहुत अमेजिंग टूल है जिसे हम कहते हैं 3D कंपैरिजन, जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होता है। और इसकी मदद से हम बेसिकली अपने पार्ट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, अपनी कैट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, दैट हाउ एक्यूरेट इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू आवर एक्चुअल पार्ट। या फिर अगर वेंडर या ओईएम आपको ओरिजिनल कैट प्रोवाइड कर दे, तो आप अगर कोई पार्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आप उसको भी उसके साथ कैट के साथ कंपेयर करके अपने पार्ट में डेविएशंस जो हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, डेविएशन रिपोर्ट निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इंशाल्लाह इसको मैं लाइव डिमॉन्स्ट्रेशंस में डिटेल में कवर करूंगा, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम इस तरह से विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर किसी भी पार्ट की रिपोर्ट और उसके ऊपर एनोटेशंस डिफाइन करके हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास सिंपल पीडीएफ फाइल एक रिपोर्ट होती है, जिसकी मदद से हम अपनी डिफरेंट जो हमारे पास क्राइटेरिया हमने डिफाइन किया होता है, उस तरह से ये एक रिपोर्ट हमारे पास निकल आती है। और हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हमने लिए होते हैं उनकी डेविएशन फ्रॉम दी टॉप, एक्स सरफेस, वाई डेविएशन, जेड डेविएशन एंड टोटल डेविएशन, और उसका स्टेटस आइदर इट फॉल्स विद इन द एक्सेप्टेड क्राइटेरिया और नॉट। तो हमारे पास इस तरह से ये एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल है इंस्पेक्शन के एक्सपेक्ट में। जब हम बात करते हैं 3D स्कैनिंग हमारे पास किस तरह से हेल्प कर सकती है, वो हमारे पास एक तो इंस्पेक्शन इस तरह से की जा सकती है, प्लस हम मेजरमेंट्स भी स्कैन डाटा में से निकाल। तो ये प्रीवियसली तो कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। वी डिस्कस्ड so far we have discussed 3D scanning, reverse engineering, types of 3D scanners on the basis of its source, and the type of 3D scanner based on its accuracy and size. And then we have discussed the complete process of the 3D scanner, 3D scanning, which involves data capturing, data cleaning, and mesh creation. And then उसके बाद हमने कुछ pre-recorded demonstrations देखी हैं, जो कि हमारे पास इसमें हमने अभी गो थ्रू की। नाउ अब जो है मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस की तरफ कुछ जाता हूँ। और आई प्रिपेयर्ड सम डेमोन्स्ट्रेशंस फॉर यू, जिसमें लेट मी क्विकली रन रन डाउन विद यू आर सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है स्कैन व्यूअर, और इसमें हम अगेन इसकी डिटेलिंग में मैं नहीं ज़्यादा जाऊंगा। ज़्यादा हम डिटेलिंग में फीचर्स और एनालिसिस को आज डिस्कस करेंगे, बट अगेन दिस इज द कंप्लीट विंडो ऑफ इट। जब भी हम स्कैनिंग करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का लाइव डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, और स्कैनर हमारा जब कनेक्टेड होता है, और यहाँ से अगेन हम पॉइंट डेंसिटी और अपना एक्सपोजर जो है डिफाइन करने के बाद हम मार्कर्स को पहले स्कैन करते हैं, लाइक आई शोड यू इन माय डेमोन्स्ट्रेशन। एंड देन हम उसके बाद जो है सरफेस को स्कैन करते हैं, एंड बेसिकली उसके बाद हमारे पास फर्दर स्टेप्स इसमें से प्रोसेस किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास स्कैनिंग में सारी चीज़ें हमने कवर की, तो मार्कर स्प्लाइसिंग और लेजर पॉइंट स्प्लाइसिंग को हमने कवर किया। देन वी हैव दिस ऑप्टिमाइज टैब। दिस ऑप्टिमाइज टैब इज़ वेरी हेल्पफुल। फॉर एग्जांपल, हमारे स्कैन के अंदर कोई होल्स रह जाते हैं या कोई गैप्स रह जाते हैं, हम उनको फिल आउट कर सकते हैं, अपने डाटा की के साथ को शॉर्ट रिड्यूस या इनहेंस कर सकते हैं। अपने डाटा के अंदर अगर हमारे पास कोई ऐसे फीचर्स हैं जो कि हम मूव करना चाहें, वो कर सकते हैं। अगेन मैं इनमें से कुछ फीचर्स अभी सेलेक्ट करूंगा और कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में कवर करूंगा, और हम अपने पार्ट को डाटा की सरफेस को स्मूथ आउट कर सकते हैं, और ये हमारे पास बहुत हेल्पफुल है, जिससे हम किसी भी वांटेड डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मेजरमेंट्स की कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें हम विद इन अगेन विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ एसटीएल फाइल कोई भी कोन, सिलेंडर, स्फीयर जो हमारे पास बेसिक primitives होते हैं, उनको हम इनको यूज करते हुए अपने पार्ट के ऊपर डिफरेंट फीचर्स की मेजरमेंट, उनके डायमीटर ले सकते हैं, उनकी लेंथ निकाल सकते हैं, उसकी टोटल स्फीयर मेजरमेंट्स ले सकते हैं, सिलेंडर डेप्थ एंड सिलेंडर रेडियस हम निकाल सकते हैं, तो कौन मेजरमेंट्स निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, जो कि हम यूज़ करेंगे अपनी डेमोन्स्ट्रेशंस में। देन हमारे पास अलाइनमेंट की टैब होती है। दिस इज पर्टिकुलरली यूज्ड इन ऑर्डर टू अलाइन द एसटीएल फाइल, और हमारे पास जो मैश फाइल कैट फाइल होती है, स्टेप फाइल,
उसको दोनों को अलाइन करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उनको परफेक्टली अलाइन करें और फिर 3D कंपैरिजन से डेविएशन रिपोर्ट जो कि हमें इंस्पेक्शन पर्पसेस में रिक्वायर्ड होती है, हम उसकी जनरेशन कर सकें। और जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मेजरमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने फीचर्स में मेजर की, या फिर हमने फ्लैटनेस या सर्कुलरिटी स्ट्रेटनेस, ये फीचर्स की हमने मेजरमेंट्स करनी हो, तो ये विद इन द सेम इन्वायरमेंट यूजिंग द एसटीएल फाइल हम इसको यूज कर सकते हैं और फर्दर अपनी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। So let me just quickly show you the example of maybe marker splicing, and then we'll jump to optimize the part and do some feature measurements. So let me just open a few projects for you. So in my first project, there is this merging activity. जिसमें I have this mesh file of one object. ये पार्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए, इसमें हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं। लेट मी जस्ट क्विकली open the project 1, and or I've already opened project 2 as well, and I need to show you something that is very much of interest to you. इस टाइम मैंने दोनों प्रोजेक्ट्स को जो है अपने ओपन कर लिया है, एंड यू कैन सी कि इसकी हम इस बेसिकली प्रोजेक्ट की टॉप सरफेस है एंड दैट इज द बॉटम सरफेस, और इसमें हमारे पास बॉटम नहीं है और इसमें हमारे पास जो है टॉप सरफेस नहीं है। तो वट अब हमने इन दोनों प्रोजेक्ट्स को बेसिकली मर्ज करना है और सिंगल एक हमारे पास स्कैन हमने डेवलप करना है आउट ऑफ दिस दीज टू प्रोजेक्ट्स। तो जिस तरह से I've shown you in my demonstrations, we'll go to the marker splicing and load these two projects. And what I have to do next is that कि मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से जो मेरे पास कॉमन मार्कर्स हैं, जो कि मेरी साइड स्कर्ट्स पे जो हैं शो हो रहे हैं, तो इनको मुझे सेलेक्ट करना है, ताकि मैं फर्दर इन दोनों सॉफ्टवेयर को ये डिफाइन कर सकूं कि कौन सी साइड हमारे पास कौन से वाली है, और इसकी बेसिस पे सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग होता है कि वो आपके लिए इन दोनों स्कैन्स की मर्जिंग कर देता है। तो इन दोनों इस स्पेसिफिक केस स्टडी में हमारे पास जो साइड स्कर्ट है, इसमें हमारे पास कॉमन मार्कर्स मौजूद हैं, और मैंने कुछ मार्कर्स रफली सेलेक्ट कर लिए हैं सारे फेसेस से। तो जैसे ही हम ये सिलेक्ट करते हैं, तो यू सी कि ये इसने मर्जिंग की है, और ये मुझे इस टाइम इसका प्रीव्यू दिखा रहा है मर्ज करके। ठीक है। इसमें हमारे पास जिन पॉइंट्स की मर्जिंग नहीं होती, उन पॉइंट्स को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है। और उसके अलावा जो दोनों पॉइंट्स के बीच की एक्यूरेसी भी है, वो आपको इस टाइम शो हो रही है कि दोनों पॉइंट्स के बीच में जो स्टिकर एक दूसरे स्टिकर के ऊपर मर्ज हुआ है, तो उन दोनों में एक्यूरेसी कितनी है। तो ये डिफरेंट एक्यूरेसी की रेंज और आपके पार्ट की ओवरऑल एक्यूरेसी इस टाइम कितनी है, ये आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं अपने पार्ट के ऊपर से। आप इनमें से किसी पार्ट की जिसके ऊपर डेविएशन ज़्यादा आ रही हो, आप उस पॉइंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं और अगेन रीअप्लाई कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी पार्ट की ओवरऑल जो एक्यूरेसी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपने पार्ट को स्कैन मर्ज करते हैं, और उसके बाद अब इन दोनों पार्ट्स को मर्ज करके ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स का सिंगल पॉइंट क्लाउड डाटा आपके पास इस तरह से शो हो। तो ये हमारे पास अगेन अभी पॉइंट क्लाउड डाटा है, इट्स नॉट अ मैश फाइल। तो आई क्विकली गो इनटू द रैप and convert this point cloud data into the mesh or STL file, which is effectively and eventually used by me in order to reverse engineer my. So in sometimes it will take few like 1 or 2 minutes, and in sometimes it will take just seconds in order to convert this into an STL file. And you can see this is how the software has effectively generated me with the mesh file. And in order to see कि इसके अंदर हम अगर मैंने जिस तरह से ट्राइंगल्स की बात की थी, तो अगर मैं ट्राइंगल्स को देखना चाहूँ, तो ये कमांड से मैं जाके अपने ट्राइंगल्स को देख सकता हूँ कि हमारे पास किस पोजीशन पे किस तरह की ट्राइंगल्स हमारे पास जनरेट हुई। आप से विजुअलाइजेशन से देख पा रहे होंगे एक चीज, कि सॉफ्टवेयर का एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग है कि जहाँ पे हमारे पास, इसे हम कहते हैं अडेप्टिव मैशिंग, अडेप्टिव मैश क्रिएशन।
अडेप्टिव मैश क्रिएशन मीन्स कि जहाँ पे मेरे पास फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये एक फीचर है, ये एक फीचर है, ये एक फीचर है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर ने डाटा साइज जो है या ट्राइंगल्स का साइज जो है वो फाइन रखा है। और जहाँ पे मेरे पास फ्लैट सर्फेसेज हैं, जैसे ये एक फ्लैट सर्फेस है, तो वहाँ पे मेरे पास जो डाटा का साइज है वो कोर्स रखा है। तो आइडियली दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल कि मैं अपने पार्ट की बेस्ट वे में, जो मेरे फीचर्स हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे, और मेरी जो फ्लैट सर्फेसेज हैं, again these are not compromised and it can be further used to develop the CAD out of. Once we have this STL file, हमारे पास इसके अंदर फिर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके साथ हम प्ले अराउंड कर सकते हैं। For example, if I go into the Optimize tab, there is the first option like fill holes. Fill holes are something like the minor gaps that are, present within the data. For example, you can see कि यहाँ पे एक छोटा से डाटा मिसिंग है। तो अगर यहाँ पे मैं इस डाटा को फिल करना चाहूँ, तो सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम खुद से इतना स्ट्रांग है कि वो आपके लिए इस डाटा को फिल आउट कर सकता है। और छोटे छोटे होल्स अगर जहाँ पे, जो कि आपको शायद नेकेड आई से नजर ना आए, तो सॉफ्टवेयर कैन पिक दोज होल्स फॉर यू एंड कन्वर्ट दोज इनटू द मैश, और आपके पास वहां से डाटा आपका जो है मैश का कंप्लीटली फिल्ड आउट हो जाता है। सेकेंडली, रिफाइन एंड सिंप्लीफाई आर द टू कमांड्स जिससे हम अपने मैश की, अगर बड़े साइज को मैं स्कैन कर रहा हूँ तो मेरी डाटा क्वालिटी भी ज़्यादा हमारे पास आती है। तो अगर इसके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस टाइम हैं 7,16,000 ट्राइंगल्स, अगर मैं इनको रिड्यूस करना चाहूँ तो मैं इनको रिड्यूस करके एक बाय द बुक जो है मैं इसको 50% टू 60% तक रिड्यूस कर सकता हूँ। इससे मेरी डाटा क्वालिटी रिड्यूस नहीं होती। तो ये हमारे पास आपकी फाइल साइज जो इन इन टर्म्स ऑफ एमबीज डेवलप होती है, उसको छोटा कर देगा, और आपकी जो मैजिक या किसी भी सॉफ्टवेयर की हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो दीज टू कमांड्स आर वेरी यूजफुल। फिर हम फॉर एग्जांपल रिमूव फीचर्स को अगर यूज़ करना चाहें, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई फीचर मुझे डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक इंडेंट सा बना हुआ है, एक इंडेंट है, इसको मुझे रिमूव करके फ्लैट आउट करना है। तो उसके लिए देर इज, यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन की कमांड्स हैं। फॉर एग्जांपल ब्रश सिलेक्शन है, हमारे पास लेफ्ट सिलेक्शन है, we have rectangular and polygonal selection. For example, मैं brush selection से यूज करते हुए इस स्मॉल डॉट को, स्मॉल इंडेंट को खत्म करना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास, इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड आई हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड द रिमूव फीचर्स, एंड आई गो इनटू अप्लाई, एंड यू कैन सी कि आपका जो इंडेंट का जो आपकी कोई अनवांटेड फीचर्स है जिनको आप डिलीट करना चाहें, यू कैन बेसिकली डिलीट इट यूजिंग दिस कमांड, और आप फर्दर इसमें से अपनी पार्ट को मजीद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फिर पॉलिश की कमांड हमारे पास होती है इन ऑर्डर टू स्मूथ, बट ये पार्ट ऑलरेडी हमारा काफ़ी स्मूथ है। बट इन ऑर्डर टू जस्ट शो यू कि हमारे पास पॉलिश किस तरह से काम करती है, पॉलिश की अभी मैंने स्ट्रेंथ बढ़ाई है। तो अगर आप ये देखें तो ट्राइंगल्स को ये स्मूथ आउट कर रहा है, और अगर सरफेस में इस व्यू में शायद आपको इतना विजिबल नहीं होगा, बट अगर मैं मैश में ओपन करूँ तो आप देखेंगे ट्राइंगल्स जो हैं थोड़े से रीएडजस्ट हो रहे हैं, और सरफेस अगर आपकी आई वुड से कि नॉन लीनियर है, या नॉन आपकी प्लेन या स्मूथ सरफेस नहीं है, नॉन स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस है, तो उसको आप इस तरह से यूज करते हुए स्मूथ आउट कर सकते हैं। अगेन यू हैव टू डिसाइड कि आपकी इन द एंड डाटा क्वालिटी, या आप इन द एंड आपके पार्ट की जो एक्यूरेसी है वो अफेक्ट ना हो, तो आप उस लेवल पे रखते हुए स्मूथनेस का लेवल डिफरेंट सेलेक्ट करते हैं। जी, हमारे पास कुछ ऑप्टिमाइज के फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से हमारे पास पॉलिश के बाद क्विक सेलेक्ट का एक फीचर है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने में। ये किस तरह से हेल्पफुल है? फॉर एग्जांपल क्विक सेलेक्ट से मैं किसी भी सरफेस का जो डिजायर्ड डाटा है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला इस फेस का, इस सिलेंडर का जो सर्कमफ्रेंशियल डाटा है, ये वाला डाटा लेना चाहता हूँ, तो क्विक सेलेक्ट मेरे लिए ऑटोमेटिकली ऑन अ सिंगल क्लिक वही वाला डाटा मेरे लिए सिलेक्ट कर देगा। अदर वे अराउंड इज कि मैं मैन्युअली जाऊं और ब्रश सेक्शन से जाके, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लियर आउट करूं, तो मैं ब्रश सेक्शन से जाके इसको पूरे डाटा को सेलेक्ट करूं, और उसके बाद इसको फर्दर यूटिलाइज करूं अपने फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने में। बट विद द हेल्प ऑफ क्विक सेलेक्ट,
this command becomes very easier. And for example, features में if I need to measure the slender of ये हमारे पास एक cylindrical feature है और मुझे इसके depth और इसका dia find out करना है, तो what I can do is basically select this data, and I'll go to this cylinder feature extraction, and the data जिसकी basis पे iterate करते हुए वो cylinder develop करेगा, वो हमने already select किया हुआ है. And again I'll go to preview, and you can see that it has created a cylinder on top of the actual feature. तो हमारे पास इससे क्या हमें मिलता है कि यहाँ हमारे पास यहाँ पे फीचर्स सिलेंड्रिकल डाटा में यू कैन सी कि आपके पास सिलेंडर का डायामीटर जो है इस टाइम इस सिलेंडर का डायामीटर आ रहा है दैट इज 10.06 millimeters. And again the height of the cylinder which is from the top of the surface to the bottom, जो ये टोटल हाइट है वो हमारे पास आ रही है. सो दिस इज वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी यूजफुल. इस तरह से हम डिफरेंट किस्म के इसके ऊपर हम फीचर्स को ड्रॉ करते हैं. और फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अगेन एक कॉनिकल फीचर है, एक कोन है, तो मैं इस कोन को सिलेक्ट करता हूँ and I'll go to feature and select this cone. It has created the cone on top of it, and again I'll go to cone, and based on this you can see कि हमारे पास इस कोन का एंगल जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, इस कोन की हाइट जो कि टॉप से बॉटम तक है, इसकी बेस डायमीटर 19.6 mm और इसका टॉप डायमीटर 10.4 mm. ये हम मेजरमेंट्स लेके अपनी रिपोर्ट के साथ साथ इसके स्क्रीनशॉट्स लेके अपनी रिपोर्ट में भी मेजरमेंट इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेजरमेंट्स दिखा सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं. इसी तरह से हमारे पास ये सफ़ियर है, तो सफ़ियर में भी आई क्विकली सेलेक्ट दिस सफ़ियर और यहाँ पे जाएंगे सफ़ियर में एंड आई क्रिएट द सफ़ियर. और सफ़ियर में भी इसी तरह से सफ़ियर के पैरामीटर्स में इसका डायमीटर सफ़ियर का 20.05 शो हो रहा है, तो ये हमारे पास डिफरेंट मेजरमेंट्स हम इससे कर सकते हैं. What if I wanted to create a circle और इसका डायमीटर मुझे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक है, इसका मैं डायमीटर फाइंड करना चाहता हूँ. ये सिलेंडर भी है बट अगेन आई क्रिएट यूजिंग दिस सर्कल. तो हमारे पास इसमें फिटिंग के बेतहाशा मेथड्स हैं जिसमें हम इंटरसेक्शंस के थ्रू भी अपने फीचर्स को बना सकते हैं, पॉइंट्स के थ्रू भी बना सकते हैं और पैरामीटर डिफाइन करते हुए भी बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल सेलेक्टिंग द पॉइंट्स, तो सर्कल के लिए आई जस्ट क्लिक 3 पॉइंट्स ऑन टॉप ऑफ इट और आई जस्ट अप्लाई एंड इट विल मोस्ट लाइकली क्रिएट दिस सर्कल. और ये हमारे पास एक सर्कल क्रिएट हो गया. इस सर्कल का डायमीटर अगेन इज 20.2. तो ये हमारे पास इस तरह से ये डायमीटर्स भी मेजर हम कर सकते हैं. सिमिलरली हमारे पास इसकी अगर मैं टोटल लेंथ निकालना चाहूँ इस पार्ट की, फॉर एग्जांपल मैं एक प्लेन यहाँ पे बना लूँ, तो जस्ट एक रफ लेंथ मैं निकालना चाहूँ, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाटा सेलेक्ट किया और जंप किया प्लेन के ऊपर, और प्लेन के ऊपर जाके आई सी अप्लाई एंड क्रिएट अ प्लेन ऑन दिस लीनियर सरफेस. दिस इज माय प्लेन वन. अगेन I'll go to quick select and select this face. ठीक है, और इसके ऊपर भी जाके I'll go to features and make a plane out of it. तो ये हमने दो planes इस टाइम क्रिएट कर लिए. What if I need to create that I need to measure the total length of this part. तो हम इस प्लेन टू प्लेन डिस्टेंस के थ्रू भी टोटल लेंथ, फॉर एग्जांपल मैं रफ एक लेंथ निकालना चाहूँ, तो हमारे पास एनालिसिस में डिस्टेंस की ऑप्शन मौजूद है. डिस्टेंस की ऑप्शन में हम जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है प्लेन वन एंड प्लेन टू को सिलेक्ट करेंगे, तो यूल सी कि हमारा टोटल डिस्टेंस इन एम एम्स इज 293.35 millimeters फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस. इसी तरह से एक्स वाई एंड जेड इज द फर्दर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट. तो इस तरह से हम ये मेजरमेंट्स किसी भी शक्ल की, किसी भी शेप की इसमें से निकाल सकते. इस तरह से हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, सर्कुलर टू सर्कुलर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं दो फीचर्स के बीच में. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सिलेंडर है और ये मैं इसके ऊपर भी एक सिलेंडर फॉर एग्जांपल डिफाइन करता हूँ. आई गो टू सर्कल, सर्कल एक डिफाइन करते हैं यहाँ पे. इसके ऊपर फिटिंग मेथड के थ्रू मैं पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ. ठीक है, 1 पॉइंट
अगेन आई कैन यूज क्विक सेलेक्ट in order to select the data, या फिर आप पॉइंट्स के थ्रू, इज जस्ट द योर वे ऑफ क्रिएटिंग स्टफ फॉर यू। सो ये मैंने इस टाइम दो सर्कल डिफाइन करनी है। एक सर्कल वन इज दिस वन, और सर्कल टू हमारे पास ये है। अच्छा, अब इसमें भी हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास होता तो हम यहाँ से डिस्टेंस मुहैया कर सकते हैं फ्रॉम सर्कल वन टू सर्कल टू। तो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इनका, ये हमारे पास 158.27 मिलीमीटर्स जो है, हमने इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास बेतहाशा डिफरेंट फीचर्स और डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई नीड टू मेजर द एंगल, तो अगर जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एंगल आ रहा है, तो मैं अगेन यहाँ पे जाते हुए एक यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आई गो टू फीचर्स एंड क्रिएट प्लेन, and by plane and I select this angular surface। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मैंने प्लेन क्रिएट किया, ठीक है। ये मेरे पास एक प्लेन एंगल पे क्रिएट हो गया, ठीक है। इसे जैसे ही हम रन करते हैं नाउ, जो है हम जंप करते हैं एनालिसिस में एंड एंगल मेजरमेंट में। नाउ आई नीड टू फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन वन एंड प्लेन थ्री। तो प्लेन वन एंड प्लेन थ्री के बीच में जो एंगल है आपके पास, वो आपके पास डिफाइन हो सकता है। अगेन 180 डिग्री आप इस डायरेक्शन में एंगल लेना चाह रहे हैं या इस डायरेक्शन में, वो आपकी डिफरेंट आपकी मेजरमेंट्स हो सकती हैं। बट अगेन इस अगर इस पोजीशन में मैं एंगल लूँ तो दैट इज 68.5 डिग्रीज। अगेन मैं ऑपोजिट वे अराउंड भी ले सकता हूँ, तो दैट इज योर वे ऑफ सीइंग थिंग्स। तो इस तरह से आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं इसमें। हम डिफरेंट चीज़ों को प्ले अराउंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अनदर थिंग इज़ टू मेजर द सिलेंड्रिसिटी। फॉर एग्जांपल, हमने दो सिलेंडर्स बनाए थे, अभी हमने सिलेंडर बनाया था ये इस पे, इस वाले उसके ऊपर। तो अगर मैं इसकी सिलेंड्रिसिटी फाइंड करना चाहूँ, तो यू कैन सी कि मैं यहाँ से इसकी डेविएशन और इसकी सिलेंड्रिसिटी जो है वो फाइंड कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसी तरह से हमारे पास सफ़ियर भी हमारे पास था, तो हम सफ़ियर की भी सफ़ियर सिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन फ्लैटनेस हमने किसी प्लेन सरफेस की फाइंड आउट करनी है, तो मे बी फॉर एग्जांपल प्लेन वन की फ्लैटनेस फाइंड करनी है, तो इसकी हम फ्लैटनेस इस पूरी सरफेस की फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड डिफरेंटली सो एंड सो फॉर हम डिफरेंट अपनी मेजरमेंट्स लेके, इनकी रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट्स लेके डिफरेंट इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। हमारे पास बेतहाशा ऑप्शंस मौजूद हैं विद इन दिस कमांड। इसी तरह से मैं ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड नहीं करूँगा। हमने काफ़ी सारी चीज़ें फीचर्स की एक्सपर्ट से डिस्कस की हैं। इसमें हमारे पास और बेतहाशा चीज़ें और भी हो सकती हैं, लेकिन अगेन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम इसमें ज़्यादा प्ले अराउंड अभी नहीं कर सकेंगे। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, उसके लिए लेट मी जस्ट ओपन अनदर पार्ट, और मैं एक सेक्शन आपको दिखाना चाहता हूँ कि how we can basically create sections and measure different values out of it। तो आपके कोई हिडन फीचर्स हों या आपके कोई ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप उससे निकालना चाह रहे हो, तो वो एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक ऑप्शन हो सकती है। For example, this is another part, and this is a cylindrical block again, which we have scanned for one of our customer। Um, तो ये हमारे पास एक स्कैन रिजल्ट है। अगेन दिस इज़ वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ 3D स्कैनर। और इसमें आप देख सकते हैं कि फीचर्स को भी, इफ़ यू वांट टू वेट और द रिजल्ट्स ऑफ सिम स्कैन सीरीज, यू कैन सी दैट हाउ ब्यूटीफुली इट हैज़ कैप्चर्ड दीज डिटेल्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एक सेक्शन लेके इसका ये इंटरनल ये जो डायमीटर है जस्ट एक मेजर करना चाहूँ, तो वो भी हम किसी इस कमांड के थ्रू मेजर कर सकते हैं। एक रफ अगर मेजरमेंट्स हम करना चाहें, तो ये बाकी फीचर्स तो हम इसमें से, अगेन इसके ऊपर भी डिफरेंट फीचर्स हैं, सिलेंड्रिकल फीचर्स हैं, कॉनिकल फीचर्स हैं, मे बी कुछ कॉन्स भी मुझे नज़र आ रही हैं, तो वो हम कर सकते हैं। बट अगेन इफ़ आई वांट टू यूज़ दिस सेक्शन कमांड और हिडन कोई फीचर जहाँ पे हम उसकी कोई मेजरमेंट्स या सेक्शन व्यू अगर देखना चाहें, तो वो भी हम इस ऑप्शंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई जंप इनटू द सेक्शन व्यू एंड इसमें हम जैसे ही जाएंगे तो हम यहाँ से फॉर एग्जांपल आई ड्रॉ अ लाइन, या हम एक प्लेन भी क्रिएट कर सकते हैं।
तो जैसे ही मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ, अपनी रेंज एक डिफाइन कर दूंगा, तो यू विल सी कि आपको एक सेक्शन जो है ना वो मिल रहा है। ठीक है। इसी तरह से आप डिफरेंट ओरिएंटेशंस में डिफरेंट सेक्शंस जो हिडन इस व्यू में इसको नजर आ रहा है, इसने जो सेक्शन निकाला है, तो आप इसकी बेसिस पे भी कोई ना कोई अपनी इंटरनल डायमीटर या इंटरनल मेजरमेंट्स ले सकते हैं टू शो यू हाउ इट्स डन। तो मैं सेट करता हूँ अगेन, मेरे पास ये सेक्शन आ चुका है, और मैं जाऊंगा फीचर्स में, और मैं इसका डायमीटर फाइंड करना चाहता हूँ, तो आई क्विकली सेलेक्ट द डाटा जो कि हमें सेक्शन से मिला है, और ये इसको आइट्रेट करते हुए फिटिंग कर देगा एक सर्कल की इसके ऊपर। एंड यू कैन सी कि ये सर्कल जैसे ही हमारे पास आया, तो हमारे पास इसका डायमीटर भी आ गया, जो कि हमें इस सेक्शन व्यू से मिल रहा है। अगेन डिफरेंट चीज़ों के लिए आप डिफरेंट कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका डायमीटर आप फाइंड करना चाहें इस सेक्शन में, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट क्विकली सेलेक्ट इट अगेन। आई विल गो टू दिस सर्कल कमांड एंड सेलेक्ट द डाटा। तो बेस्ड ऑन दिस आप अपना डाटा कोई भी पार्ट का सेक्शन लेके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रफ एक जस्ट एक आपके सामने एक अटेम्प्ट कर रहा हूँ, जस्ट टू शो यू हाउ इट्स डन। फॉर एग्जांपल अगर ये हमने डाटा सेलेक्ट किया, तो इसके ऊपर ये इसने एक सर्कल देखें पूरा प्रॉपरली उसके ऊपर फिट इन कर दिया। एंड इफ आई नीड टू सी द डायमीटर ऑफ इट, आई कैन क्विकली जस्ट measure it and make these record these into my Excel format. So this is how the features measurements are done. And a few things which we have discussed is the angle measurement, distance measurement, and different geometrics measurement, which can be traced out using this command. Again, my next demonstration is for the CAD comparison. Now this is very important, जो कि हम inspections में बहुत ज़्यादा हद तक यूज़ कर सकते हैं। तो for CAD comparisons we must have the mesh file of the actual part, and secondly we should have the model file of the developed part जो कि हमने बनाया है। तो I just import these into the environment of the software. First of all, this part. In this part, what I'll do is that I'll import these two different parts into into the environment of the software. Again, this is the CAD file of one of my object, and again I have the STL file which I have already scanned this part and of this part, and I'll import that into the environment of the software. So in order to quickly show you around, you can see that this is my scan file, and this is my CAD file which I have already developed in Geomagic. So what if I need to see the division in these two parts? So first of all, I need to first align these parts with each other and merge these parts with each other. How I'm going to do that is that I'm going to jump into the alignment tab, and the software, there are many other different alignment tabs, alignment options. Uh, I will not discuss these in detail, but for example, the most common one is the best fit alignment, which is basically that the software will automatically align the part for you based on its iterative techniques and its algorithm. When I apply it, you'll see that for most of the time, the software can automatically align and fix the part and impose the part on each other using this best fit alignment. And you can see that in my preview that it has already aligned these two parts into a single coordinate. And once it is done, I'll click on the apply. And now I'll jump into the analysis tab. Now my part is aligned. Now I'll jump into the analysis tab and I'll open this 3D comparison, which is very important for inspection purposes. So as a reference, I can select both. I can either select the STL file as a reference or as a CAD file as a reference. In this case study, I'll select this CAD as a reference because I need to check it with my original part. So once I've done this, apply this, I'll click on apply, and you'll see the heat map, the deviation map. That is very important and very useful for you in order to see that how much your part is accurate. You can define this range. For example, this range is now -1 to 1.
And based on the contextualization or heat map, you can see that this is basically how it generates you the deviation, and it tells you different colors within the environment of the CAD, and you can further apply this and create annotations out of it. Once you select your critical parameters, for example, I'll select this fitment area, maybe this one is important parameter. Based on your observance or your um, importance, you can select and define and select do annotations from different points. Once I do this, I can select my upper limit and the lower limit. Again, for this case scenario, maybe the upper limit is 1 or the lower limit is -1, and I will automatically arrange these within the environment, and on the just single click you'll see that it has automatically arranged this within the environment of the software, and I can save this view. And now this view is saved, and now I can tilt it around and take another few annotations which I think are of critical nature, and maybe I'll align this part in this orientation now. And again, I will auto arrange this and save this view, and now my two orientations are saved and different measurements are being recorded within the system. My inspection is, for example, done. So in order to create the report, I'll just fill in few parameters like name and everything, author, maybe me, and maybe you can fit in different details of this part. And once this is done, you can save it on your desired location and name it maybe inspection report, and it will be on just a single click. You'll see that my inspection report has been prepared by the software, and the details which I have incorporated are already within the environment, and you can see that the first image I took in this orientation and the second image was already taken. So it automatically arranges the part for me, and again, where the part fails within the designed with the acceptable range, it will suggest you fail, and where it passes and within the range, the part is within the range, it will give you the pass and fail criteria. So this is very important, and this is how you can, further so and so on, do inspections for different parts. Maybe this is one of the part, and I have some other parts as well, and you can do the similar with your parts and your geometries, and further we can have this comparison report, which is very useful for most of our clients. Another part, and I'll do repeat the procedure and create the inspection. Another part is called throttle body. This is the CAD file, and I have the mesh file for it. This is the scanned mesh file. Automatically, to show you that this is the CAD, this is the STL file, and I'll jump into the alignment tab. And most common one is the best fit method, but maybe in some future webinars, we'll be discussing all other techniques as well. The software algorithm is again very strong, and it will quickly generate the report will quickly generate and merge the part with each other, and see how beautifully it has merged these two parts with each other. I'll click apply and then quickly go to deviation map and select the body and select the mesh. And with this one, again, heat map is generated. I can create annotations, and so and so far, my key critical areas can be maybe this bearing fitting or this whole fitting. It can be anything, like you can define your key important parameters. Based on that, once you define the upper range and the lower range, you can
quickly create the auto arrange, and it will automatically arrange the measurements for you and make it in a more representable way. Once this is done, you can again save the report and create the mesh, create the report out of it, and submit it to your customers for inspection purpose. So this sums up the live demonstrations, and there are a lot of stuff to discuss, but the time is the limitation here. So I'll jump back to my presentation where we left, carry on with some case studies and examples which we have done in the past. So these are when we talk about the application, the applications are very broadly, defined from the aviation industry, from aircraft scanning to aircraft inspections. The 3D scanners are widely used in order to scan the complete aircraft or some designated modules or some designated parts of the aircraft, and create the it's used for inspection as well. And similarly, the most common and most important use is in automotive industry. What if your parts are damaged? Yeah, what if you don't have the drawings, you don't have the CAD model, you are just importing or exporting, importing the complete engine from maybe some US customer or from any other foreign customer, and you need to develop your own parts. You need to develop your own drawings, your own CAD changes. So you must have a CAD body, CAD model. So for that, reverse engineering is one of the major help which will, help you a lot in developing and supporting the local industry. And we are proudly can say that we have been in the market and we have supported the local industry in terms of indigenous development of different projects from the market. So these are one of the ways, one of the examples, like heavy industry are the major beneficiary of this scanning industry, and they used to scan their developed parts and then compare it with the CAD model, and or maybe they need to redesign or do a modification. They can further do this using these scanners and develop the CAD model accordingly. Railways, ships, automated inspection is one of the things which I'll highly focus during this webinar. What if you have an assembly line and there is a continuous production going on? This automated 3D inspection is very convenient for the customers for which there is a continuous production and continuous manufacturing, and you need to inspect each and every part. So there is always going to be a human error. There can be lags in that. But if you use this scanner with a robotic arm, which we have the solution, we call this solution AM cell and AM desk, automated desk and automated cell. These solutions are widely used in the production industry, and they have the nominal CAD model built in their memory, and they automatically scan the part which is coming from the assembly line, and if the part is within the acceptable range, it is accepted, and otherwise it is being sent for modifications. So this is one of the examples of the 3D scanners and applications where it is being used. And some of our projects are from the past, and this is again one of our customers, tractors manufacturers in Pakistan, for which we have completely reverse engineered their complete engine, and we have scanned the part, we developed the CAD models, and we developed the CAD drawings, 2D drawings for that customer, and also submitted them to, and it's being used in their production. And similarly, this is again one of the track engine assembly. This is the slender head example, and this is the complete engine which we have animated, and this is again assembled one. So there were more than 15 components, major components, which were part of this reverse engineering project. Again, these are one of the molds
which require very high level of accuracy. With the help of more different other patterns or different other objects are being made. So it's very important to capture the details and develop the CAD model with high level of details. So this is one of our customer in Pakistan, and we have scanned these mold and develop these and submitted it to the customer. This is one of the examples of heavy industry. This is the crane in Varsik, which is near Peshawar, and we developed this CAD model of this lifting overhead crane. So it was scanned using the transfer scanner and the handheld scanner, and we basically what we did is created the CAD model, and along with that, you can see that this is the textured model as well of the actual crane, and then this is the CAD model which we basically traced out from the mesh which we created and submitted to the customer. Again, this is one of the representation of that. This is very important. This is the refurbishment project going on at Mangla. And it was a project that HMC was maybe if they are here today, they'll vet that. They were manufacturing it, and we basically scanned this part and created the CAD model out of it. So again, the HMC were to develop this and manufacture this. So this is one of our significant projects, which we, these are those projects which I can share. Otherwise, there are many other strategic projects which we have done in the past, and we have been utilizing this technology. This is the example of an engine. That's the surface body of the engine that was the ultimate objective. In that engine, you can see that there are six mounting points. Like these are one. This is one mounting point. This is second, and the third one is over here. So, and the three on the other side. So, actually we wanted to calculate the weight and calculate made the foundation for that. This engine was completely scanned, and this is a ship engine. So weight calculation plays a very pivotal role, and central mass is the very important parameter that we that was considered. So for that purpose, we created this surface body and correctly measured these center to center distances of the holes, as well as help the vendor in creating the foundation for it. This is again the representation of the engine surface that we made. And one of our latest project is this amazing gas turbine CDC, which is the compressor discharge casing. And we this basically part again, this is the project of GE, and we are their registered vendors. And this part is basically around 8 meters in length. And what we did is we placed the stickers on the complete part and scanned it and created the STL file of the complete part. So the ultimate objective was the inspection. So what they did is they basically compared these STL with the nominal model which the client has, and that is how, like I did in my live demonstrations, I compared the mesh with the nominal CAD. So this is how this is a live example, a perfect example that how these big parts can also be compared and further inspected with the nominal CAD model and see if there are any deviation that exists within the environment. So summarizing to that. Is basically that 3D scanner, every 3D scanner is of great help, and with time, technology has evolved a lot. Starting from the structural light, then to infrared scanners, and now to blue laser. It is very convenient, it is very accurate, it is very um,
it has reduced the time a lot, maybe I would say, as compared to the manual measurements or conventional techniques. So these are of great help for not just for measurement and also for the quality inspections and quality assurance. So with reference to that, I sum up my today's webinar, and I hope that it was a great help for all of my participants from the industry. And maybe if you have any questions or you can ask from me, and you can further contact us through our website, or you can further reach out to me from using you can scan this QR code and reach out to me in person. This is my LinkedIn profile, and you can further contact, note down my email, or maybe or contact me in person. I believe this session was a great help to anyone present today. And if you have any questions relevant to that, maybe I can address you based on the questions you have. So you are most welcome to ask if you have any questions, um, um, and I'll be happy to answer that. Assalamu alaikum, sir. Ji, walaikum salam. Sir, it was an amazing session. You have explained all the concepts, all the types very well. But Thank I you. want to ask you two questions. My first Mhm. question is, um, you have explained the concept of 3D scanning. Like we have 4 to 5 steps. The first step is 3D scanning part. Yeah. Then we have data processing, where we Yeah. clean the mesh, and Yeah. then we create the STL file. Then we create the prototype, or we actually manufacture it. Yeah, exactly. That is O- basically the steps of the 3D scanning. Yeah, Okay. Now, sir, my question is, you have talked about the STL file, or the triangulated file, which we use for 3D printing. yeah. So there is also one step that is called analysis and modification if required. Hmm. So Hmm. for this step, like for analysis, we need a very important a very important engineering tool that is called FEA. So we Yeah, cannot do FEA using STL files. We need CAD files. Like we yeah, need a exactly. step file, Exactly. we need a step Yeah, file, or we true. need IGS file, or we need a Yeah, native CAD file. So yeah. how can we make the surfaces out of 3D scanning model? So can you please tell me about this? So let me quickly jump to that slide actually, and then I'll explain it to you. So आपका सवाल जिस तरह से था that how we can make the surfaces out of it. So that in summarizes that we have already scanned the part, we have cleaned the part, we have gathered the data and create the mesh file out of it. But in order to make these surfaces out of it, you have to use this additional software called reverse modeling softwares, which is basically called which we use is the Geomagic Design X. Otherwise, on the other hand, you can also use CATIA, which I believe is a little tough one. But in order to perfectly handle the STL file, and the main software which handles this perfectly is the Geomagic Design X, specifically made for reverse engineering purposes. So this software is very easy to learn. We also provide the trainings for that as well. The steps are very simple. Like if अगर आप सॉल्वर्स के यूजर हैं और आप सॉल्वर्स पहले यूज कर रहे हैं या कोई भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो यू नो दैट आप उसकी जो है ना, सबसे पहले उसकी 2D फीचर्स जो है ना वो डिजाइन में अपने लेके आते हैं, 2D फीचर्स को डिफाइन करते हैं, उसके पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। और जब आपके 2D फीचर्स फॉर एग्जांपल कोई सर्कल है या कोई स्लॉट है या मे बी कोई रेक्टेंगुलर फीचर है, जब आप वो एक दफा डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आप उसकी ना 3D पार्ट मॉडलिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा, सिमिलर प्रोसेस हमारे पास जियोमैजिक में भी किया जाता है। अभी इस टाइम मेरे पास उसमें अभी हमारे सेशन की उसमें तो नहीं था, बट लेट मी सी इफ आई कैन क्विकली
show you around. I have the geometric with me. Let's just discuss it for like 2 to 3 minutes. I'll show you around. तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जाके हम उन्हीं 2D फीचर्स को, जैसे हम सॉल्वर्स में 2D को ड्रॉ करते हैं, हम इन्हीं 2D फीचर्स को अपने STL में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब मेरे एक्सट्रैक्ट करने का मुराद से मतलब ये है कि आप उन फीचर्स को उसमें से ट्रेस आउट करते हैं, उसका सेक्शन लेते हैं और उसके ऊपर अपनी 2D को रीड्रॉ करेंगे। वंस आप उस 2D को एक दफ़ा रीड्रॉ कर लेंगे तो आपने अगेन सारे फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं, इसके सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसके अंदर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल मॉडल के अंदर आपके पास सारे एक्सट्रूड, रिवॉल्व, लॉफ्ट, ये फीचर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स वही फीचर्स हैं जो कि आपके किसी भी कैड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में होते हैं। बट इसमें जो आपकी नेटिव फाइल होगी जिसकी बेसिस पे आप कोई मॉडल को रिवर्स कर रहे होंगे, दैट विल बी एसटीएल फाइल, जो कि आपकी एक रेफरेंस फाइल होगी। अब आपको एसटीएल से क्या होगा कि आपको ना मेजरमेंट्स आपके लिए निकालना बहुत इजी हो जाता है जब आप रिवर्स मॉडल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कोई फाइल क्विकली इसमें लेके आता हूँ इसके एनवायरनमेंट में, और आपको एक छोटी सी एक मेजरमेंट या एक फीचर एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। ऑल्दो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सेशन टुडे, बट जस्ट टू फॉलो अप विद द योर क्वेश्चन, let me just quickly import it. I have some samples with me that will be very much, I believe, helpful to you as well. Maybe let's bring this part into the environment. Okay, so this is the part for which I have showed you my inspection within the ScanView software. Okay, so first thing to do is to align this part. In this case scenario, my part is already aligned. Otherwise, if you scan the part, your part will not be aligned. So आपके different alignment की टैब्स होती हैं, अभी हम उसको डिस्कस नहीं करते। बट अभी ये हमारे पास STL फाइल मौजूद है। इफ यू नीड टू शो टू सी इट्स ट्राइंगुलर डेटा, यू कैन सी कि ये हमारे पास STL डेटा है। ठीक है, दिस इज नॉट द कैट फाइल। यहाँ पे हम डिफरेंट पॉइंट क्लाउड डेटा इसका देखना चाहें, हमारे पास व्यूज की डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। अगेन ये हम डिटेल ट्रेनिंग में डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी मैं इसके ऊपर अगर हम मॉडलिंग किस तरह से करते हैं कि हम एक प्लेन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ से इस सरफेस को सेलेक्ट करते हुए एक प्लेन क्रिएट करना है, तो यहाँ से हम जाते हैं और मे बी मैं यहाँ पे जाते हुए अपने डाटा को पहले अपने प्लेन से एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, और हमारे पास यहाँ से इस प्लेन के रेफरेंस में मैं एक प्लेन अपना ले लेता हूँ। ठीक है, और इस डाटा को हमने सेट किया है। अच्छा, अच्छा, इसमें एक चीज हमने पहले जो करनी होती है, दैट इज मेकिंग द रीजन्स। रीजन्स हम क्यों बनाते हैं? रीजन से हम डिफरेंट शेप्स को अपने सेग्रीगेट कर लेते हैं बेस्ड ऑन इट्स फीचर। जहाँ से आपकी फीचर की शेप चेंज हो रही होती है, वहाँ से एक नया कलर आपको रीजन्स की शक्ल में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल ये कॉनिकल शेप है तो इसका एक अलग रीजन आपको मिल गया है। जहाँ पे फिलेट लगता है तो आपको एक अलग रीजन मिल गया है। ठीक है, ये एक टॉप सरफेस है, यहाँ पे आपको एक अलग से एक रीजन मिल गया, ये इसकी साइड है, तो डिफरेंट आपको ना कलर्स मिल जाते हैं। और बेस्ड ऑन दीज रीजन्स ना, ये हमें रीजन्स सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं STL के ऊपर काम करते हुए। जैसे ही हम रीजन पे जाते हैं तो ये मेरे पास पूरा डाटा इस रीजन का, फॉर एग्जांपल ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये देखिए मेरे पास पूरा डाटा इस फेस का ये सिलेक्ट हो गया। इसी तरह से अगर मैं इस रीजन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इसका डाटा जितना इस रीजन में आया हुआ है ये सेलेक्ट हो गया है। इसी तरह से ये फेस है। तो ये हमारे पास सिलेक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प हमें हो जाती है जैसे ही हम रीजन बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इस फेस को सेलेक्ट करते हुए मे बी एक प्लेन यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक प्लेन बना के इसके ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन होती है इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो कि कहलाती है मैश स्केच। मैश स्केच एक ऐसी ऑप्शन है जो कि आपको किसी भी उस प्लेन के रेफरेंस पे जाते हुए आपको एक ट्रेस किया हुआ एक रिजल्ट दे देती है। आप ये देख पा रहे हैं जो आपका सवाल था। आप अगर हम 2D में जिस तरह काम करते हैं सॉल्वर्स में, तो 3D में भी हमारे पास इसी तरह से जब हमारे पास STL फाइल होती है तो ये जो ट्रेसिंग हमें मिलती है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कोई भी चीज़ हमें रीड्रॉ करने में। ठीक है, तो ये जिस पोजीशन पे भी मैं लेके जाऊंगा, फॉर एग्जांपल
अभी इस पोजीशन में मैं यहाँ पे समझता हूँ कि शायद यहाँ पे जाके अगर मैं इसको परफेक्टली एक ट्राइंगल बना लूँ, यहाँ पे जाके मैं इसे कम्प्लीटली अभी इस पार्ट में जैसे ये फीचर है, अगर मैं इसको यहाँ से कम्प्लीटली एक सॉलिड पहले एक्सट्रूड करके इससे कट लगा दूँ तो मेरे पास ये पार्ट बनना शुरू हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं से इस पोजीशन पे जाके डन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास यहाँ पे मुझे इसका एक रफ इसने ना ट्रेस किया हुआ एक रिजल्ट है। ये रिजल्ट जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब हमने कोई भी चीज़ रिवर्स मॉडलिंग करनी होती है। अब इसमें आप दोबारा से इसके ऊपर 2D स्केचिंग करेंगे और अपने पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक फिलेट, ये सही फिलेट नहीं लगा हुआ, तो इसको आप परफेक्टली इसके ऊपर या तो मैनुअल मॉडलिंग करेंगे, लाइंस को लाइंस के साथ इस तरह से कंबाइन करके और इसके ऊपर फिलेट अपना रीअप्लाई करेंगे। या फिर इसमें एक और टेक्निक भी होती है जो कि मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं गया और यहाँ से इसे मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैंने एक इसे कंप्लीटली कॉर्नर डेवलप करके यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होती है इसको फिलेट डिफाइन करने की। अब ये फिलेट का रेडियस कितना है वो आप यहाँ से, इसी सॉफ्टवेयर की ब्यूटी है कि आपको ये रेडियस भी आइट्रेट करके दिखा सकता है कि आपके मैश के ऊपर इस टाइम रेडियस कितना था। तो वो आप यहाँ से मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप खुद से भी इसकी यहाँ से एक्यूरेसी एनालाइजर इसका ऑन करते हुए इस रेडियस को डिफाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे 2 करता हूँ इस रेडियस को, फॉर एग्जांपल मैंने इसे 2 किया, ठीक है, तो यहाँ से एक्यूरेसी एनालाइजर ऑन किया तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये अब मेरी रेंज के करीब आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस रेडियस को 3 करता हूँ तो ये और ज़्यादा परफेक्टली उसके ऊपर आके लाइन के ऊपर मेरे उसके ऊपर बैठ गया और ये मेरे पास और ज़्यादा एक्यूरेट उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो इस तरह से हम एक एक फीचर को ना इसके ऊपर कंप्लीटली इस मॉडल के ऊपर रीड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर जाते हुए फिर जब एक फीचर हमारे पास बन जाएगा तो हम यही जो हम सिंपल डिजाइनिंग में टूल्स यूज करते हैं, एक्सट्रूड के, रिवॉल्व के, लॉफ्ट के, तो वो सारे टूल्स यूज करते हुए हम पे अपनी मॉडलिंग करते हैं। तो ये एक अलग स्टेप है, बट इसको हम डिटेल में मे बी आपका क्वेश्चन की बेसिस पे एक नेक्स्ट वेबिनार हम जियोमेजिक पे रख लेंगे, तो हम इसकी डिटेलिंग पे फिर जाएंगे। बट अभी क्योंकि हम टॉपिक से अपने हट जाएंगे तो दिस इज हाउ यू डू द मॉडल, और इसका मॉडल भी इसी तरीके से ही मैंने कंप्लीटली बनाया हुआ है, एक एक फीचर को एक्सट्रैक्ट करके और एक्सट्रूड और डिफरेंट कमांड्स का यूज करते हैं। आई बिलीव सो कि आपका आंसर एड्रेस हो गया होगा। Yes, sir. Thank you so much. Sir, I have जी another question. If you can answer it, जी जी please. प्लीज। श्योर श्योर श्योर। Sir, for inspection, you have told us about we compare CAD model versus scan data. So, sir, what if we don't have CAD model? Like the purpose of reverse engineering is we have a हम्म physical part and we basically reverse it. So, हम्म। what if we don't have CAD model? Then how can we compare it like CAD versus scan? अच्छा, वो डिफरेंट केस सिनेरियोस है जिसमें मैंने आपको बताया, जैसे मेरी लास्ट जो एग्जांपल थी जिसमें मैंने आपको बताया कि द ओईएम जो सप्लायर है या क्लाइंट है उसके पास ऑलरेडी इसका कैड मौजूद है इस स्पेसिफिक पार्ट का, सीटीसी का, एंड हाँ वी और हाँ, इसको बेसिकली हम स्कैन करके उस कैड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। अच्छा, अगर आपके पास कैड नहीं है देन आपके पास क्या होता है कि आप इसकी कंपैरिजन फिर आप हम दो इसकी हाइब्रिड कंपैरिजन करते हैं इसमें। एक तो हमारे पास इसका स्कैनिंग करके इसकी हम मॉडल डेवलप कर लेंगे, वो मॉडल कितना एक्यूरेट है उसके लिए फिर हम कुछ और चीज़ें भी यूज़ करते हैं, जैसे लेज़र ट्रैकर्स अगर आपने सुने हो, वो एक अलग एस्पेक्ट में बात हो जाती है। लेज़र ट्रैकर्स उसके लिए यूज़ होते हैं जो कि फिजिकल पार्ट से मेजरमेंट लेके आपको जो है आप उसकी अपने कैड के साथ इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या फिर आप मेश से भी मॉडलिंग से भी मेजरमेंट्स निकाल के अपने कैड में इंकॉर्पोरेट करके कुछ मेजरमेंट्स जो कि मेजरेबल हैं यूजिंग दी वर्नियर कैलिपर, या जैसे इसके ऊपर ये कुछ होल्स थे ना यहाँ पे, इनको आप वैलिडेट कर सकते हैं यूजिंग वर्नियर से, हाई एक्यूरेसी वर्नियर को यूज करते हुए, और अपने मेश के अंदर से भी ये वैल्यू निकाल के देखें डेटा से, जो कि आपके उसके अंदर फीचर्स एक्सट्रैक्शन से इसका डायमीटर निकल आएगा और एक वर्नियर से निकलेगा। तो अगर वो दोनों सेम है तो आपको इस तरह से भी डेटा की आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाती है और आप उस मेश की बेसिस पे भी अपने कंप्लीट मॉडल को रीडेवलप कर सकते हैं। तो ये भी एक टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट फिर इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं। जो हम अभी जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि
एक आपने कैड मॉडल या तो बनाया, उसको आप चेक करना चाहते हैं कि फिजिकल पार्ट से कितना एक्यूरेट है। ठीक है। सेकंड केस सिनेरियो वाज कि आपके पास कैड मॉडल मौजूद है और फिजिकल पार्ट आपने मैन्युफैक्चरिंग की, और उसकी कंपैरिजन अगर आपने करनी है तो हाउ दिस इज डन यूजिंग द 3D स्कैनर्स। तो ये बेसिकली वाज द एजेंडा ऑफ आर। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क प्लीज। Yes, sir. Thank you so much. You have explained the concept very well. Do I have any other questions, please? Let me just jump into the main window. Okay. I can see there are 24 messages. Okay, so these are all emails. Is if there is any question further, most welcome to ask that. Otherwise, we can further wrap this up, and hopefully, we will be having these webinars more in the future, and um, uh, it will be major help to all of the participants. Sir, can we get the presentation? Sure. Once this session is over, I'll send the presentations. My team will send the presentations to you, as well as the if you need some recorded videos as well, it will can also be sent. Thank you. Sir, presentation would work well if you email the presentation. Sure, sure. Can kindly drop your email in the chat box, or maybe reach out to me or the my company. They will handle this and they'll send the presentation over to you. Okay, sir. Thank you. If you have any questions, you can reach out to me in the future and address to those person to you. Thank you so much for joining with us today, and hope that the session was a great help to all the participants, and looking forward for more amazing sessions in the future, and see you around.